Hello everyone, welcome to our channel the India Reads. As you know that in our previous lecture we have done chapter number 1 of history class 7 NCERT, and today we are going to start a second chapter, that is new kings and kingdom. Let's start. History. This is chapter number 2. Chapter name is New Kings and Kingdoms. This is of NCERT class 7, and remember that this is the part 1. न्यू किंग्स, नए राजे तथा शासक. So students, in this chapter we will discuss about the some new type of the dynasties, kings and kingdoms. Here we will discuss some new emerging dynasties, kingdoms and kings from 7th century to 12th century. तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि जो नए उभरते हुए डायनेस्टीज थी, ओके, एंड व्हेन द पर्सन फ्रॉम द सेम heredity ruled after one after another, this is known as dynasty. Kingdoms and kings, नए जो कुछ राज्य और नए राजा आए 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक हम यहाँ पर जो है उनकी चर्चा करेंगे. एंड इट इज इंक्लूडिंग, we'll discuss about गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल्स, पल्लव्स, चालुक्यस and Chauhan. Okay, and in this concept, firstly we'll start from the point that is the emergence of new dynasties. Emergence of new dynasties. तो जो नई डायनेस्टीज, जो नए शासन उभर कर सामने आए थे, यहाँ पर हम जो है उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे. As we know that in previous chapter we have read in the previous class 6, that firstly the king was like just a head who was just leading the society. प्राचीन समय में जब कोई राजा राज्य करता था तो वो सिर्फ वहाँ का एक मुखिया हुआ करता था. He was not living the luxury life, he was not having the palaces or the capitals, okay, just he was the leader of the society or group. वो किसी सोसाइटी का, किसी समाज का, किसी कबीले का एक मुखिया होता था, ना कि वो किसी शाही शौकत जीवन को जीता था, ना महलों में रहता था, ना उसके पास कोई विशेष राजधानी हुआ करती थी. बट एज द टाइम स्पेंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, एज द टाइम पास्ट और इंक्रीज्ड, द किंग बिकेम मोर पावरफुल. राजा काफ़ी शक्तिशाली बन गया था. एंड नाउ ही वाज लिविंग इन पैलेसेस and including one capital also, and he was having the lot of powers and a lot of titles.
तो अब राजा के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो उपाधियाँ और टाइटल उसके पास आ चुके थे। एंड फॉर द हेल्प ऑफ द किंग, द स्पेशल पर्सन वर देयर हु वर regarded as the part of the kings, who was known as the subordinates or summons. Subordinates or summons. These subordinates or summons that just work for the welfare of sake of the king. ये सामंत लोग जो थे ये सिर्फ राजा के लिए अपना कार्य जो थे किया करते थे. ओके, एंड these summons are also very powerful, and it was expected that they people will collect the taxes for the kings. They also arrange the type of the army or military for the kings. Okay, they were the we can say that the main part of the king's administration. राजे का जो प्रशासन था उसमें अहम रोल जो था इन सामंतों का था. ओके, and that's why when they became powerful they declared themselves, they became very powerful and declared themselves they declared themselves Mahasamans or Mahamandaleshwar. Lords of a circle or region. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ये सामंत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए थे तो इन सामंतों ने अपने आप को जो टाइटल दिया वो महासमंस, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बाद इन्होंने अपने आप को महासमंस कहलाना शुरू कर दिया था, या फिर इनको कई बार महामंडलेश्वर भी कहा जाता था. महामंडलेश्वर प्राचीन समय में या आधुनिक समय में भी महामंडलेश्वर वर्ड जो है वो विख्यात या दैवीय व्यक्ति के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ये अपने साथ महामंडलेश्वर जो वर्ड यूज करते थे. लॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और रीजन, किसी पर्टिकुलर सर्कल का, एरिया का, किसी क्षेत्र का अपने आप को भगवान ही समझते थे, क्योंकि वहाँ पर इनकी जो प्रभुता थी, जो सत्ता थी इनकी वहाँ पर कायम थी. एंड एज दे बिकेम महामंडलेश्वर महासमन, सम टाइम they also declared independent themselves from the authority or the present rulers. Okay, and they just started their own kingdom, the small or own kingdom. तो इस समय में सामंत जो थे कई बार ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि ऐसी उदाहरणें सामने आई जब सामंतों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया हो और उस जो राजा के अधिकार में सबॉर्डिनेट में वो काम करते थे उसको छोड़ के उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र इलाका जो है वो उसकी लीडिंग करनी खुद शुरू कर दी हो. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स. तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसकी एक एग्जांपल जो सामंत थे और सबॉर्डिनेट्स थे. देयर इज अ एग्जांपल ऑफ Rashtrakuta in Deccan. Firstly, they were subordinate to Chalukyas, but their chief named Dantidur who declared himself independent from the Lord
body and also performed some rituals under the guidelines of some Brahmins हिरण्य गर्भ means golden womb, and in this way became ruler to body. तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसमें एक एग्जांपल है राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट डेक्कन जो कि साउथर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दक्षिणी हिस्सा देश का जो था, दक्षिणी एरिया, जो राष्ट्रकूट थे जो पहले चालुक्यस के अंडर थे, चालुक्यस के सबऑर्डिनेट थे या उनके संबंध थे, लेकिन बाद में उनके जो एक मुखिया थे जिनका नाम था दंतिदुर्ग, उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था और अपना खुद का शासन जो था स्टार्ट कर दिया था, खुद रूलर बन गए थे, सबऑर्डिनेट थे। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों की देख रेख में एक बहुत बड़ा जो उस समय का कर्मकांड आयोजित करवाया जिसका नाम हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वूम कहा जाता है, निभाया और एक स्वतंत्र शासक जो थे बन गए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये टाइम टू टाइम ये शासन के लिए जो सामंत लोग थे वो भी आगे आए और उन्होंने अपने आप को किस तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। नाउ विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। Administration in the kingdom. शासन में प्रशासन, which type of arrangements were there to run the kingdom smoothly or the administration? Here we will discuss about that कि शासन में प्रशासन उसमें किस तरह उन्होंने अपना स्टार्ट किया गया था। As we know that due to the lot of power, as the king were collecting the taxes and also collecting the taxes from the traders, producers, he became so powerful. He was having the capital city also, and he was living in palaces due to the fortified, किलाबंदी करके वो अपने राजमहल में रहता था, काफ़ी पावरफुल हो चुका था। तो he also give lot of titles to himself, like a महाराजा धिराज। महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, ग्रेट किंग, महान राजा, तीनों लोगों का स्वामी, जिसको हम त्रिलोकी भी कहते हैं।
तो राज्य की स्थिति इतनी ज़्यादा उस समय जो थी वो मजबूत हो चुकी थी कि राजा अपने आप को महाराजा अधिराज कहता था। महाराजा अधिराज, पहले राजा, ठीक है, राजा से महाराजा और महाराजा से महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज यानी कि ग्रेट किंग, एक बहुत महान राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट उसको कहा जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा इम्यूनसिंग पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। और आसपास के एरिया के जो उसके विरोधी थे वो उससे घबराते थे कहीं ना कहीं उससे टक्कर लेने में। दैट इज कंसीडर एज त्रिभुवन चक्रवर्ती, जो कई तरह के रिचुअल परफॉर्म भी करता था। एंड लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, इसको तीनों लोगों का स्वामी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि उसने हर जगह पर अपना प्रचंड लहराया है, इसीलिए उसको तीनों लोगों का जो है स्वामी भी कहा जाता है। ओके, एंड इट वाज necessary to pay the tax to this type of the great kings। इस तरह के राजा को जो टैक्स देने काफी जरूरी होते थे। ओके, देयर वर स्पेशल अथॉरिटीज, देयर वर स्पेशल अथॉरिटीज who were collecting taxes from peasants, cattle keepers, artisans and traders। Mostly the post was hereditary। तो उस समय जो कुछ खास अथॉरिटीज का प्रबंध किया गया, जो राज्य के लिए कई प्रकार के कलेक्शन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, चाहे वो पीसेंट किसानों से करना हो, कैटल कीपर्स जो पशुओं को अपने पास रखते थे, पशु रखाव का काम करते थे, जो आर्टिशंस कलाकार लोग थे, एंड ट्रेडर्स व्यापारी लोग थे। मोस्टली दी पोस्ट्स वर हेरिडेटरी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर जो अथॉरिटी में पोस्ट पद दिए जाते थे वो हेरिडिटी पर, वंश पर आधारित होते थे। इट मीन्स दैट जनरेशन टू जनरेशन इट पास फ्रॉम फादर टू सन एंड सो ऑन, पिता से पुत्र और आगे ये जो गद्दी पोस्ट थी, पद थी, चलता रहता था। तो इस तरह से जो चोला डायनेस्टीज है, इन चोला डायनेस्टीज देयर इज ए डिस्क्रिप्शन about 400 types of taxes। Okay, and sometimes the producers have to forcefully, they have to surrender to give some part to king which they were producing in the form of a tax, as the lord or a king or authority considered himself the owner of that land। उस समय का जो राजा था, अथॉरिटी थी, लॉर्ड था, उसको कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो वो उत्पादन कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा देना लाजमी होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी या राजा जो होता था उस जमीन का अपने आप को जो है मालिक समझता था। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रशस्तिस एंड लैंड। प्रशस्तिस and land grants। In our previous chapter we have already discussed that prashasti is the Sanskrit word, which means
praise of, mostly composed by the court poets or learned Brahmins. Okay. In these Prashastis, we can understand the king or authority wanted to show himself as victorious warrior और सुप्रीम। तो प्रशस्ति जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रशस्ति जो है दैट इज द संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत का शब्द है विच मीन्स इन द प्रेज ऑफ, जिसका मीनिंग है किसी की प्रशंसा के लिए कुछ लिखना। दैट इज मोस्टली कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोइट्स। तो ये प्रशंसा जो थी प्रशस्ति, वो ज़्यादातर कोर्ट पोइट्स ने करी थी, जो किसी अथॉरिटी या राजा के दरबार में जिनको आश्चर्य प्राप्त था, इसलिए अपने आश्चर्यदाताओं के लिए बढ़ा चढ़ा कर लिखना उनकी एक बेबसी भी कही जा सकती है। और लर्न ब्राह्मण या फिर जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित ब्राह्मण थे जिनको काफ़ी ज्ञान था, वो ये कंपोज करते थे इन दीज प्रशस्ति। तो ये प्रशस्ति जितनी भी हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जो राजा या अथॉरिटी थी वो अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था, एक विजेता, एक योद्धा और महाशक्तिशाली। विजेता, योद्धा और महाशक्तिशाली। So there are so many prashastis that belong to the different type of kings like Samrat Ashok, like Samundargupta, Chandragupta, Vikramaditya, etc. There is also in the prashastis and the Brahmins who were writing these prashastis for the king or authority, they were getting the grants of lands. The Brahmins who composed prashastis were rewarded grants of lands with their name on copper plates. तो जिन ब्राह्मणों को ये इनाम दिया जाता था, रिवार्ड दिया जाता राजे की तरफ से, प्रशस्ति से लिखने के ऊपर उनको जमीन कुछ दी जाती थी, और ये जमीन उनके नाम पर कैसे बोलती थी, कॉपर प्लेट्स के ऊपर उनका नाम जो था खुलवाया जाता था, ताकि ये एक तरह की उनकी ये सिंबल रहेगा, यादगारी रहेगी, और साथ के साथ उनकी एक निशानी रहेगी कि ये राजा की तरफ से जो है ज़मीन उनको जो है ग्रांट में दी गई है उनके लिए प्रशस्ति लिखने के कारण। As well as during the prashastis, here has been found a long Sanskrit poem which tells us about the rulers or kings
who control over Kashmir region. Composed by a great poet कलहन। तो प्रशस्ति इसके साथ ही एक संस्कृत की पोएम भी प्राप्त हुई है उस समय, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती कि उस समय के जो शासक और राजा लोग थे जिन्होंने कश्मीर के एरिया में अपना कंट्रोल स्थापित किया था, एंड दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट कलहन, जिसको कंपोज किया, जिसकी रचना की है कलहन ने। He also takes details of Prashastis eyewitness accounts, inscriptions and ancient histories. Which is considered to be most useful for the study of history or gaining the knowledge of that period. उस समय के पीरियड इतिहास के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से हमें जो है इसके बारे में स्पेशली जो जानकारी मिलती है कि कश्मीर के एरिए में जो राजा या शासक जो हैं सक्रिय रहे थे, और कवि जो कलहन है उसने अपनी डिटेल्स दी है, जिसमें उसने प्रशस्ति की मदद ली है, आई विटनेस जो उसने अपनी आंखों से देखा उसका वर्णन किया है, इंस्क्रिप्शंस और प्राचीन इतिहास की सामग्री जो मिली उसके साथ उसने इसका तालमेल काफ़ी अच्छे से जो है स्थापित किया। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट दी वारफेयर फॉर वैलिस। वारफेयर और वैल, तो इसमें वारफेयर में हम लोग जो है चर्चा करेंगे एट दैट टाइम हिस्टोरियन हैज नेम्ड दिस पीरियड or era as three-tide struggle। तो हिस्टोरियंस ने इस समय को जो है थ्री टाइड या इसको ट्रीपार्टाइट भी कहते हैं, conflict among three powers। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। तो इसमें उस समय तीन जो शक्तियां थी, तीन शक्तियों का आपस में जो था संघर्ष चल रहा था फॉर दी सिटी ऑफ कनौज in the Ganga Valley, because that region was a very fertile and full of resources which can be very useful for the
एनी अथॉरिटी और द किंगडम, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा गंगा घाटी का मैदानी इलाका बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, डेल्टास की मदद से बना था और इसमें काफ़ी ज़्यादा साधन अवेलेबल थे किसी भी शक्ति को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए। तो उस समय जो ये तीन मेन पावर्स थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। एंड दैट इरा इज ऑल्सो नॉन एज ट्रिपार्टाइट और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तीन पावर्स के बीच में एक लंबा संघर्ष चला इसको लेकर। ओके, एज वेल एज वी विल आल्सो डिस्कस दैट as we know that each powerful dynasty had its specific region and capital city, yet they tried to conquer or control any other region. जैसे कि हमको पता है कि कोई भी डायनेस्टी जो पावरफुल डायनेस्टी होती थी वो अपने उसका एक खास स्पेसिफिक अपना एरिया होता था, अपनी स्पेशल कोई राजधानी होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने प्रभाव को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। इसके लिए वो विस्तारवादी नीति जिसको कहते थे उसको अपनाते थे, अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए किसी और रीजन को भी कंट्रोल में अटैक करने की कोशिश किया करते थे। एंड they often showed their power to build some forts and temples। तो अपनी पावर को शो करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किले बनाते थे या फिर मंदिरों का निर्माण करते थे जो उनकी शक्ति का एक सिंबल हुआ करता था। And when any particular king or authority attacked on any other region, firstly they target or attack on that particular temples which were full of the resources and wealth। और कोई दूसरा शासक जब किसी और एरिया पर अटैक करता था तो उसका सबसे पहला फोकस उन मंदिरों या किलों के ऊपर होता था, क्योंकि वो मंदिर जो थे वो खजाने से भरपूर थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद थे। If we will give example, then there is the example of Sultan Mahmud Ghazni, Sultan Mahmud Ghazni from Afghanistan, who ruled (917 to 130). Okay, so he often attacked on the Indian subcontinent and the Central Asia. He often attacked on the Central Asia and subcontinent of India, and mostly target the Indian temples which were full of resources, example the Somnath temple, Gujarat। तो
अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो सुल्तान महमूद गजनी, जिसका नाम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, अफगानिस्तान से, जिसने 917 से 1030 तक शासन किया था और अक्सर ही उसने भारतीय उपमहाद्वीप में, मध्य एशिया में हमले किए थे। उसके हमलों का मुख्य केंद्र जो रहा था वो भारत के मंदिर थे और ऐसा माना जाता था कि भारत के मंदिरों का जितना भी खजाना था, पैसा था, धनराशि थी, वो महमूद गजनी लूट कर अफगानिस्तान ले जाता था, जिसमें कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, और इनके जितने हमले हैं उसका सारा डिटेल्ड वर्णन जो है उस समय के द ग्रेट स्कॉलर नेम अल-बुरानी has given the account of the details. This Arabic work is famous as किताब अल हिंद। और महमूद गजनी जो था, सुल्तान गजनी, उसके हमलों का और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसका सारा वर्णन उस समय के विद्वान जिसका नाम अल-बुरानी था उसने किया है। ये एक अरबी भाषा का जो लिटरेचर है जो दैट इज़ फेमस एज ए किताब अल हिंद, जो किताब अल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के सारा इतिहास, वहाँ के हमलों और वहाँ की स्थिति और उस समय का जो है वर्णन किया गया है। Here we will also discuss about one more dynasty that was very powerful, Chauhan dynasty was also very powerful at that time. Most famous ruler of Chauhan dynasty was पृथ्वीराज III। तो उनका सबसे जो महान शासक राजा हुआ था वो था पृथ्वीराज III, who ruled 1168 to 1192। He also defeated the greatest and powerful ruler Muhammad Ghori in the Battle of Tarain in 1191, but he defeated from Ghori very next year in 1192। तो पृथ्वीराज का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इतिहास में फेमस है क्योंकि उसने उस समय के शक्तिशाली जो शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद गोरी, जिनको उस समय कोई भी उनके साथ टक्कर लेने से, रूबरू होने से घबराता था, लेकिन मोहम्मद गोरी को तराइन की पहली लड़ाई में 1151 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अगले ही साल 1192 में इन द सेकेंड वार ऑफ बैटल ऑफ तराइन के दूसरे युद्ध में जो था मोहम्मद गोरी उसने
पृथ्वीराज को हरा दिया था. Okay, so student, this is all from this part 1 of chapter New Kings and Kingdoms, and in our next lecture we'll complete the chapter. And if you are gaining knowledge rightly from our lectures, so please try to like and subscribe our channel. Thank you very much.